Good morning, children. So, we are again together today to talk about moving coil galvanometer. See, yesterday we had talked about torque on a coil, and the shape I told you is immaterial, we found out, since only area is involved. Now, today we are going to talk about a device. What is the device? Moving coil galvanometer. So a device which is named as galvanometer, you have already heard the name, in which a coil is being moved. So moving a coil in a magnetic field, we are going to move a magnetic field. So what we can do is, we keep a current carrying coil in the magnetic field. Now, since as you know that galvanometer is a device to measure current or voltage, so for that I would require a scale. So for that the construction is like this. See, this construction I have taken from the NCERT book. You can do it from some other book also, that is according to you. But the main concept which I would like you to understand is, see, you can understand from this. See, if I take this as coil, I have taken this book. Alright, this is rectangular in shape. Yesterday also we did a rectangular coil. So now check. This is a rectangular coil. This is nothing in between. This is a wire wound like this. You can have one turn. You can have more number of turns. Certainly we will try to have more number of turns. We will see that more number of turns will make the device more sensitive. ठीक है, इस तरीके से आपका वायर वुंड है. We do have an inside soft iron core. Now soft iron core will do what? Soft iron core will make the field more strong. You can see this construction like this. ठीक है, आप पहले इससे समझ लीजिए. अब क्या हुआ? Now I'll fix or suspend this coil with a wire. Generally a phosphor bronze wire is used so that it is free to rotate. You know that when magnetic field is being applied to a current carrying coil, what happens? Yesterday also we did. A force will be on this direction. A force will be in this direction, the downward direction. They will cancel out each other since the line of action is same. One of the forces will be towards me like this on this arm, and another here. So what is this going to do? This is going to rotate like this. ठीक है, and during this rotation like this, a deflecting torque will be produced here, or you can say a restoring torque. ठीक है, जैसे ही हम इसे घुमाने की कोशिश करेंगे, वायर में इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. वो क्या करेगा? वो रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा. जैसे हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या डेवलप होता है? रेस्टोरिंग फोर्स. तो ऐसे ही जब हम टॉर्क लगाएंगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा. ठीक है, जब रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर जगह जाकर कॉइल बैलेंस हो जाएगी. अब देखिए क्या है इसमें कंस्ट्रक्शन में. ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर ले ली, इसके ऊपर हमने कॉइल ले ली आपकी. नाउ सी हियर, yesterday what we did was we talked about a radial magnetic field. और कल हमने क्या करा था? आज तो हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी है. कल हमने किसके बारे में बात करी थी? कल हमने बात करी थी सिंपल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. आपको ध्यान होगा मैंने इस तरह से बनाया था और इस तरह से कॉइल बना के दिखाई थी आपको. ठीक है, उसमें हमने क्या लिया था? वी हैड टेकन साइन थीटा. ठीक है, क्या लिया था? साइन थीटा. दैट थीटा वाज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. अब हमने इसमें रेडियल क्यों लिया है? हम इस फॉर्मूले में जो हमारा कल टॉर्क आया था, एन बी आई ए साइन थीटा, आई डोंट वांट दिस टर्म. इस टर्म से क्या होगा एक्चुअली? जब थीटा डिपेंडेंस आ जाएगी
तो ये जो कैलिब्रेशन है, द कैलिब्रेशन ऑन द स्केल विल बिकम नॉन यूनिफॉर्म, विल बिकम नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको यूनिफॉर्म करने के लिए हम साइन थीटा या थीटा को क्या लेते हैं, 0। और 0 कब होगा ये, अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल किसी भी जगह मूव करती रहे, its plane will always be parallel to the magnetic field। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, NBIA। थीटा वी हैव टेकन एज 0, वो थीटा वी हैव टेकन एज 90 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा क्या था, I'll again repeat, theta was angle between perpendicular to the plane of the coil and the magnetic field, perpendicular to the plane of the coil and the magnetic field। तो यहाँ पर मेरा थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। और अगर मैं लूँगी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल उसके साथ प्लेन के साथ, तो मेरा कॉस एल्फा आ जाएगा, यहाँ पर मेरा कॉस आ जाएगा, और फिर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये कॉस 0 की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। सो आइदर वे आप चाहे ये वाला यूज कर लीजिए, चाहे ये वाला यूज कर लीजिए, दोनों में ही सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको घुमाना शुरू किया, कॉइल को जैसे ही घूमना शुरू होगा, ए रेस्टोरिंग टॉर्क विल डेवलप। मान लीजिए ये फाई एंगल घूम गया, कितना घूम गया, फाई एंगल घूम गया, and let small k be the restoring torque per unit twist, per unit twist। तो टोटल टॉर्क कितना हो गया, के 5, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बिकॉज व्हेन इन बैलेंस कंडीशन दे बोथ विल बी इक्वल। NBIA इज इक्वल्स टू K5, so 5 will be equal to K upon NB, no, NBIA upon K. You can take I on the right hand side. All right, and now you can see that phi is proportional to I. See, n number of turns for a given coil is a constant. Magnetic field is constant. A is area of the coil, which will be constant. K is the restoring torque per unit twist, depending upon the material, will be a constant. So this whole will be a constant. So phi is proportional to I. And when phi is directly proportional to I, in that case, the calibration will be uniform, and therefore we'll get a uniform scale for measuring current. Now again come here, we'll talk about sensitivity of galvanometer. Now what actually sensitivity is? Sensitivity is for a very, very small change, the deflection is being given. So galvanometer is said to be sensitive when it deflects for a very, or gives a reading when very, very small current flows through it, or a very small voltage is applied across the coil. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे. वी डिफाइन टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी and voltage sensitivity. Current sensitivity and voltage sensitivity. Now current sensitivity will be deflection produced per unit current.
Why? How much it will be? Phi upon I is equals to NBA upon, okay, and voltage sensitivity, phi upon, see, I'll bring it from here only. See, voltage sensitivity will be the deflection produced per unit voltage. अब मुझे यहाँ पे वोल्टेज बनाना है तो मैं क्या करूंगी? I'll multiply by R on both the sides like this. So what it will give me? Phi upon V is equals to NBA upon K. अब देखिए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? वेदर इट इज करंट और वोल्टेज. देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कैन नॉट बी चेंज, एरिया कैन नॉट बी चेंज फॉर अ गिवन किलोमीटर. तो मुझे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू? वी कैन टेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. वी हैव यूज्ड अ सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है, और ये बचा क्या? restoring torque per unit twist. Now that will depend upon the material of the suspension wire. जिस वायर से मैं इसको लटकाऊंगी कॉइल को, ठीक है, क्योंकि उसमें ही रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना है. आपने देखा होगा कुछ चीज़ें कम अपोज करती हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा अपोज करती हैं. ठीक है, उस हिसाब से मटेरियल के हिसाब से डिपेंड करेगा. तो यानी कि केवल मेरे पास क्या रह जाता है कि मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाऊँ और रेस्टोरिंग जो टॉर्क इसमें पर यूनिट ट्विस्ट है उस तरह का मटेरियल यूज करूँ जिसमें कम से कम प्रोड्यूस हो ताकि ये ज़्यादा हो जाए. तो उसकी वजह से हम कौन सा वायर यूज करते हैं? वी आर यूजिंग फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर. और भी कोई मटेरियल हो हम उसको यूज कर सकते हैं. क्वार्ट्ज फाइबर भी यूज करते हैं. ठीक है, दो क्वेश्चन अलग से जाकर आते हैं कि व्हाई डू वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाई डू वी यूज फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर. ठीक है, ये सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सी, दिस गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव डिवाइस. इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन फॉर ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है, और उसके बावजूद ये क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है. देखिए आप रेजिस्टेंस यहाँ देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को हाई करना पड़ता है ताकि हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी वो रहे, सही रहे. ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है हमारे एरिया ऑफ सेक्शन और नंबर ऑफ टर्न से तो क्या होता है? तो हम रेजिस्टेंस भी कम करना चाहते हैं. ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको एमीटर या वोल्टमीटर जब बनाते हैं तो हम इसमें अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं. दैट विल बी डूइंग ऑन मंडे टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. दिस इज फॉर टुडे. यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. और फिर हम इसी को आगे चलाएंगे. विल कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर. थैंक यू.